Lecture taken by Mrs. Subi Basil. Medical Surgical Nursing 1, Unit 3, Phases of Wound Healing. Vascular phase. Just see what is happening in vascular phase. Within seconds of injury, blood vessels starts to constrict to stop bleeding and reduce exposure to bacteria. Clotting begins. Same time the plasma protein system begins to form a fibrous meshwork. Platelet plus fibrin meshwork will together form a plug. This will cover the wound and prevent the further loss of blood and plasma. What is happening in the vascular phase? Injury will occurs and within seconds क्या होता है? Blood vessels constrict होने के लिए कोशिश करेगा. क्यों constrict होना है? Bleeding stop करने के लिए and reduce to expose to bacteria. That will leads to क्या होता है उसके बाद? Clotting process start हो जाएगा. Bleeding वो बंद करना है ना? उसके लिए clotting process start करेगा. उसके बाद क्या होता है? ब्लड के अंदर क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन है ना? प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रस मेशवर्क फॉर्म करने के लिए वो कोशिश करेगा. प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? फाइब्रस मेशवर्क फॉर्म करने के लिए कोशिश करता है. देन ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट है और फाइब्रिन मेशवर्क ये दोनों मिलके एक प्लग फॉर्म करेगा. ठीक है. देन व्हाट इज हैपनिंग? दैट प्लग जो प्लेटलेट और फाइब्रिन मिलके बनाए वाला प्लग क्या करते हैं? वूंड के ऊपर क्या करते हैं? वो कवर हो जाता है. उसके वजह से ब्लड लॉस नहीं होता. ठीक है. प्रिवेंट द फर्दर लॉस ऑफ ब्लड. दिस इज जस्ट फॉर ए नॉलेज. Capillaries will dilute 10 to 30 minutes after injury because of serotonin released by platelet. जो कैपिलरीज है वो इंजरी होने के बाद 10 to 30 मिनट्स के अंदर वो डाइल्यूट हो जाता है बिकॉज सेरोटोनिन रिलीज्ड बाय प्लेटलेट. क्या होता है? प्लेटलेट सेरोटोनिन रिलीज करते हैं. प्लाज्मा इज एबल टू फ्लो इनटू द वुंडेड एरिया टू डाइल्यूट टॉक्सिन्स and transport oxygen and nutrients necessary for tissue repair and carry phagocytes into the area. प्लाज्मा क्या करते हैं? wounded area के लिए टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये सब कुछ वो कैरी करते हैं और फैगोसाइट्स भी देते हैं. क्योंकि क्या है? जो wounded एरिया है वो जगह पे जो टिश्यू डैमेज हुआ वाला टिश्यू हमें रिपेयर करना है उसके लिए. The wounded area become warm and red. These changes are considered classic manifestation of inflammation. Wound begins with inflammatory phase of healing. Inflammation is not an abnormal state. ठीक है. वो याद रखना, इन्फ्लेमेशन कभी वो abnormal नहीं है. वुंड का एक फेस है, हीलिंग का एक फेस है. ठीक है. द वुंडेड एरिया क्या होता है? वार्म हो जाता है और रेड हो जाता है. उसके बाद क्या होता है? तभी हमें पता चलेगा ये इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया. ठीक है. एंड दिस बिगेन्स इन्फ्लेमेटरी फेस. यहां से इन्फ्लेमेटरी फेस स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड, इन्फ्लेमेटरी फेस. Inflammation begins at the time of injury and may continue for 4 to 6 days depending on the extent of the injury. The inflammatory response is so necessary to healing that is commonly said no inflammation, no healing. Normally inflammation कब होता है? इंजरी होने के बाद 4 to 6 days में वो inflammation start हो जाता है and the inflammatory response is so necessary. ये wound healing के लिए inflammatory response necessary है, needed है. ठीक है. What we can say? No inflammation, no healing. अगर inflammation नहीं है तो healing भी नहीं होता. ठीक है. So that we can say inflammation is a normal process. उसके अंदर आएगा walling of effect. That means to separate something from the area around it with a wall. That means जो affect हुआ वाला पार्ट के आजू बाजू में wall बनाते हैं. क्योंकि
बाहर मतलब जो पर्टिकुलर एरिया से वो बाहर नहीं आना चाहिए, अफेक्शन बाहर नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, वॉल बनाते हैं। A walling of effect occurs in the damaged area to prevent the spread of injuries agents to other body tissues. ये क्यों वॉल बनाते हैं, क्योंकि ये डैमेज हुआ वाला जो टिश्यू है वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए, दूसरे जगह पे स्प्रेड नहीं होना चाहिए, उसके लिए नॉर्मल प्रोसेस है, वो जो अफेक्टेड एरिया के आजू बाजू में वॉल बनाते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्लॉट्स ब्लॉक द lymphatic channels and spaces in the tissue so that fluid bearing flow through the area. फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन क्लॉट्स ब्लॉक्स द लिम्फेटिक चैनल, जो लिम्फेटिक चैनल है वो फाइब्रिनोजन ब्लॉक करते हैं एंड स्पेसेस इन द टिश्यू सो दैट फ्लूइड बेरी फ्लो थ्रू द एरिया। क्या करते हैं, फ्लूइड थ्रो नॉर्मल हो जाता है, फ्लूइड का जो मतलब जाने का रास्ता वो नॉर्मल हो जाता है। रोल ऑफ डिफरेंट सेल इन इन्फ्लेमेटरी फेज, इन्फ्लेमेटरी फेज के अंदर ब्लड के अंदर जो सेल्स है उसका रोल क्या होता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन WBCs become active to clean up the wound and initiate further healing process. WBCs active हो जाता है wound clean करने के लिए and start the healing process. Neutrophils are vital defense organism because they are both the first and most numerous cell type to active at any area of disease or injury. Neutrophils भी एक डिफेंस ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बॉडी में कोई भी जगह पे डिजीज या इंजरी हो गया तो तुरंत वो एक्टिव हो जाता है। ईस्नोफिल, ईस्नोफिल का रोल क्या होता है, इट हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बाय सेक्रेटिंग एंटीहिस्टामिन। ईस्नोफिल का रोल क्या है, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में एंटीहिस्टामिन सेक्रेट करते हैं। बेसोफिल्स का रोल क्या होता है, इट सेक्रेट हिस्टामिन। नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स, उसका रोल क्या है इन्फ्लेमेटरी फेज में, इट हेल्प्स द मैक्रोफेजेस टू बिकम मोर इफेक्टिव एट द साइट ऑफ लोकल इंजरी। जो लोकल इंजरी हुआ वाला पार्ट में मैक्रोफेजेस को वो हेल्प करते हैं, ठीक है, मोर इफेक्टिवली काम करने के लिए वो लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं। मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन फेज, मीडिएटर कौन कौन है, बीच में मीडिएटर क्या होता है, बीच में जो काम करते हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स, काइनिन्स, साइटोकाइन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। मास्ट सेल कैसा है, व्हेन मास्ट सेल्स आर स्टिमुलेटेड इट रिलीज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, दे हेल्प इन कैपिलरी डाइल्यूशन, ठीक है। मास्ट सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इट रिलीज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। These four are the mediators in the inflammatory phase.